आप देख रहे हैं प्रोग्राम 10 तक रेहान तारिक के साथ। आज जिन स्टोरीज पर देंगे दस्तक उनमें शामिल है वजीर आजम की ऑपोजिशन के खिलाफ चार्जशीट, इक्तदार में आने के लिए पनामा, इक्तदार बचाने के लिए ब्रॉडशीट। क्या शरीफ खानदान का वे मूसवी के खिलाफ बरतानवी अदालत से रुजू करेगा? क्या हुकूमत ब्रॉडशीट से दोबारा मुआहिदा करने जा रही है? मौलाना की हुकूमत पर वार, सरकार कितना है तैयार? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं 10 तक। आज वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने ट्वीट के जरिए हुकूमत के नए अहदाफ और आइंदा की हिकमत अमली वाज़ेह कर दी है। वजीर आजम ने पनामा स्कैंडल के बाद ब्रॉडशीट स्कैंडल को अपनी जद्दोजहद की कामयाबी करार दिया है। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि पनामा पेपर्स ने पाकिस्तान के अमीर हुक्मरानों को बेनकाब किया था। ब्रॉडशीट की वजह से अमीर हुक्मरानों की मनी लॉन्ड्रिंग सामने आई है। हुक्मरानों का बार बार बेनकाब होना मेरी करप्शन के खिलाफ 24 साल जद्दोजहद है। ये अमीर हुक्मरान इंतकामी कार्ड के पीछे नहीं छुप सकते। वजीर आजम ने मजीद कहा कि अशराफिया ने ना सिर्फ कौम की दौलत को लूटा बल्कि उनके टैक्स की रकम भी लूटी है। एनआरओ की वजह से लूटी रकम जाया हो गई। करप्शन के तमाम इंकशाफात अभी तो सिर्फ आगाज हैं। हम ब्रॉडशीट के मामले में मुकम्मल शफाफ तहकीकात चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि ब्रॉडशीट को मजीद तहकीकात से किसने रोका। इसी का इजहार आज उन्होंने एक तकरीब से खिताब के दौरान भी कहा। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान की इस ट्वीट से और खिताब से यह तय कि वज़ीर आज़म इमरान खान की सियासत का अगला रुख अब ब्रॉडशीट केस होगा और ब्रॉडशीट केस को लेकर न सिर्फ वज़ीर आज़म बल्कि वफाकी वज़रा और हुकूमती तर्जुमान भी ड्रम बीटिंग जरूर करेंगे। ब्रॉडशीट मामला है क्या, ये केस इतना अहम क्यों समझ रही है हुकूमत, इसी मामले पर बात करेंगे। ब्रॉडशीट के सरबराह कावे मुसावी इस वक्त हमारे साथ लंदन से मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच मिस्टर मुसावी फॉर जॉइनिंग अस। Your company has gone so popular here in Pakistan. Let me just begin with a very simple question, and I want you to respond in a very simple and candid manner. Sir, if you could please let us know what this mess is all about, Mr. Musavi. What's all about? We were retained by the government of Pakistan to find stolen money. We found billions of dollars. We were sabotaged in collecting it by the government of Pakistan, by the National Accountability. NAB engaged in a massive effort at sabotaging our efforts. They shared our information with the thieves that we were supposed to be pursuing. They often helped them to hide their money from our efforts. And in the end, because we came very close to some sensitive nerves about the money that had been looted by the oligarchs running Pakistan over the last 70 years, we were sacked. So we sued, and the court in London found in our favor on every head of the claim, including the conspiracy to defraud us being the very company, let me make this quite clear, the very company that had been retained by the government of Pakistan to find stolen money. The judge, Sir Anthony Evans, the High Court judge who presided over the arbitration, ruled that NAB and the government of Pakistan engaged in a conspiracy to defraud us. But Mr. Musavi, before going deep into the case, let me just ask you that NAB and authorities here claim that you were unable to recover even a single penny. Well, in that case, why did the High Court award us money? If we had found nothing, why did they do that? I mean, I can understand politicians wanting to spin things, but this is an insult to the intelligence of anybody who has got some sense of the judicial process. The judicial process in London was accepted by the government of Pakistan. They agreed that we go to arbitration. That arbitrator's finding is unambiguous, it's unequivocal. We found money, we found very significant amount of money, we repatriated a significant amount of money to Pakistan. The rest of it, they stopped us from doing it and they sacked us because we came too close, and therefore they didn't want us to find any more money. So that's a straightforward lie. But if you were doing it so efficiently, why they stopped you and who was behind it? Well, I tell you why they stopped us. I've just told you. The people who did not want us to find the money. I gave you an example. Mr. Sharpal we found money in his account in Jersey. They stopped us from collecting it. They removed him from the list of the targets. They gave him back his money and they made him a minister in Pakistan. That should tell you everything you need to know. What's the next question? All right. So you have put some heated allegations on former Prime Minister Mr. Nawaz Sharif. On behalf of Mr. Nawaz Sharif, you said somebody approached you and he asked for the settlement.
Who was exactly that person who approached you and asked for the settlement? I've given his name, I don't know, a dozen times. Mr. Anjum Dar came. He brought photographs of himself embracing in the home, not in a public meeting, in the home, in the private residence of appeared to be Mr. Sharif's residence, and he brought photographs, and he made a telephone call purportedly to Mr. Sharif in front of us, and offered us 25. But it's a perception, or do you have any evidence that Mr. Anjum Dar was indeed connected to Mr. Sharif? The evidence should be found by the authorities in Pakistan. Shame on those people who ask these questions. I am not the police in Pakistan. I've given the name and I reported at the time to the lawyers. The Pakistani police, the Pakistani Attorney General, shame on them that they are putting this question to me. They should be, they know who it is. Your colleagues in the press have found him. They found his photograph and I confirm that's him. Why haven't they arrested him? Then, Mr. Musavi, you don't have any strong evidence against that person, or Mr. Sharif, the former Prime Minister. And why would they approach you in year 2012 when your contract was already finished in 2003? And why would they approach you after so many years in 2012? They would approach me because the arbitration was in full swing and questions were going to be asked about Mr. Sharif's money. They approached me because they didn't want a court in London to investigate Mr. Sharif's money. Today, in 2021, after the Panama Papers, after the Supreme Court of Pakistan's finding, I really don't think I should be answering this question. If you've got some serious questions, ask me. Mr. Musavi, I have a very serious question. I hope you will answer simply and candidly. Did you ask anybody, did you intimate a government here back in Pakistan that somebody has approached you on behalf of former Premier, Mr. Nawaz Sharif? Did you ask somebody? I told our lawyers, and our lawyers know exactly what to do. If you ask me this question, let me ask you, did the government of Pakistan do anything about the formal complaint that we made about an attempt to suborn us down and to shake us down? When they were discussing this matter in 2008, we wrote a detailed memorandum, which I understand Dawn is going to publish this evening or tomorrow, a detailed memorandum about the attempt to shake us down. Did the government of Pakistan do anything about it? Absolutely nothing. I'm trying to ask you that Mr. Nawaz Sharif, who actually became Premier of the country in year 2013, did you ask Mr. Nawaz Sharif or anybody from the government to give your money back? Mr. Sharif was our adversary. Mr. Sharif was our target. Mr. Sharif was one of those crooks that we were investigating. Mr. Sharif was confirmed to have stolen a serious amount of money by the Panama Papers. Mr. Sharif's governments were found by the Supreme Court of Pakistan to be supreme crooks in Pakistan. With the greatest respect, I do not deal with crooks. So is there any chance of settlement with the current regime, current PTI government, any settlement with this government? They didn't settle. We had to squeeze it out of them. We got a court order against them. They still didn't pay. Shahzad Akbar, despite all his claims of being having human rights credentials, he came to see me in London. I met him twice, and I texted him. I still have a text. I said, shame on you. You're supposed to be a government that's supposed to behave according to the rule of law. You claim that you're a different government. Where's your respect for the court order? Here's a court judgment. Why don't you pay it? They didn't pay it. They ignored it. We had to go and hire investigators, further investigators, to find Pakistan's money and seize it. It's a complete myth. It's a lie to say they settled with us. They've not. This might have come into your knowledge that Premier of the country, Mr. Imran Khan, has recently tweeted and he appreciated what you have done so far on behalf of Broadsheet. So do you really think that you can settle with Pakistan Tehreek-e-Insaf government, the current regime in Pakistan, and is there any chance of renewal of your contract? I am willing to give the benefit of the doubt to Imran Khan. I have seen no evidence that he's personally anything other than financially clean. I've seen no evidence other, and obviously the presumption of innocence has got to apply to him. If I were a betting man, I would say that he's trying to do his best. But this much I will say: I am profoundly disappointed that he's not reining this minister who is spinning straightforward lies. He's saying that Broadsheet found no money. Not true. I've read somewhere that somebody asked you for the cuts or benefits. That they asked you, they offered you for the cuts, and they'll be renewing your contract. Is it true?
Shahzad Akbar did not. No, we didn't discuss that. The delegation, somebody who broke away from the delegation, I'm assuming, I've made a full report of this to the authorities, full report. So don't accuse me of not reporting this, because we did this within a minute of coming out of that meeting. I was on the phone to our lawyers and I said, this has happened. There's been an attempt to ask me to pay a commission in order to get a new contract. And of course, we're not prepared to do that. Now, what evidence do you have against Sharif family, and how would you be able to bring that looted money back to Pakistan? It's not something I'm willing to discuss on television. I'm afraid professional corrupt politicians have very advanced techniques of hiding their money. I would refer to the Supreme Court Justice who referred to the family as the family of the Godfather. I can only repeat what the family of the Godfather, as referred to by the Supreme Court Justice, said that. I'm not going to discuss methods. But nothing has been recovered so far. Sorry? Those allegations are still allegations. Nothing has been recovered so far from Sharif family. Evanfield Apartments are their ownership. They are in the ownership of Evanfield Apartments. It's not with Pakistan government. With respect, the decision of the Supreme Court of Pakistan is not an allegation. The Panama Papers are not an allegation. The findings of Sir Anthony Evans in London are not an allegation. The judgment of the London Court of International Arbitration are not an allegation. The refusal of the court in London to allow Pakistan's appeal, these are not allegations. These are facts. But you lost your case from London Arbitration Court of getting money out of Evanfield Apartments. What they respond you? The Evanfield Apartments, we dropped that because we were able to find alternative money which would satisfy our award. That's the explanation for why we did not go after the Evanfield Apartments. The spin that Sharif's family are putting on this is a complete pack of lies. It's an insult to the intelligence of anybody who can read plain English. We did not pursue that action for the simple reason that we were owed approximately $30 million with our the costs and the interest, and we found that money elsewhere. But then why Evanfield Apartments are still under ownership of Sharif family? You better ask the Attorney General and NAB in Pakistan rather than me. I've been out of this for 17 years. Okay, if you get a chance to work with Imran Khan, would you be able to get it back? Let Imran call me on that and I will show him what I'm able to do. I showed the government of Pakistan the evidence of $1 billion and they completely ignored it. It's a bit rich to come and to ask me whether I can find money. Sir Anthony Evans and the London Court of International Arbitration assuredly stated that I am able to find stolen money, and I have. I used to teach this stuff, corruption, restitution, and this kind. So I think I've got credentials that initially convinced the government of Pakistan as well as others to come and talk to us. But I'm not going to discuss our methods here. They are lawful, they're legal. No court will come after us with the methods that we use. Indeed, every best effort of NAB to try to libel me will backfire on them very badly. And Sir Anthony Evans says, I accept Mr. Musavi's evidence. It's there in black and white. So if you get a chance to get your contract renewed, if you get a chance to work with Imran Khan, then what I have perceived so far from your discussion is that agony, that rage will be over that you have already with NAB and authorities here in Pakistan. Shall we say, NAB do not come with very credible credentials. They don't come in with credible credentials as investigators. They certainly don't come in with credible credentials as people who honor court orders and judgments and contracts. They had a contract, they reneged on it. There was a court order, they reneged on it. They were ordered to pay, they didn't. We had to go and seize their money. And so would you go into a contract with people like that? I don't think so. But ultimately, they will be NAB representing Pakistan. NAB was my counterparty in Pakistan, and I assume that if they come and ask me to go and look for stolen money, I'm busy enough looking for stolen money at the moment with other countries, but only exceptionally because Imran Khan went to my own university, so as an Oxford man to an Oxford man, I'm on a band to listen to what he has to say.
So, Mr. Musavi, Imran Khan is very much relying on NAB these days in Pakistan. So, what you really suggest to Imran Khan, what he should do now to recover money? Because the drum beating is going on. Everybody's like talking about looted money. Everybody's like talking about godfathers. But they are not successful so far in getting money back, in recovering that money. What would you suggest Imran Khan to do so? We were successful in getting money back. Who brought back Admiral Haq? Who extradited him? Who brought the money? Who froze Sherpa's account in Jersey? Who? NAB alerted a crook in Monaco, who I named yesterday, and he fled. We were about to arrest him. So please, don't teach me how to go about finding money. I proved my credentials are doing that. And if you don't believe me, just read the judgment of the London Court of International Arbitrations. So if Imran wants my advice, an old friend from Oxford he can call me. He's got my number. Mr. Musavi, did anybody in recent days approach you from Sharif family? Because you're talking about Mr. Sherpa, you're talking about that retired admiral. But what you have talked so far about Sharif family and Mr. Anjum Dar, they have completely denied it. They don't even know about who is Anjum Dar. Well, what is that photograph then? There's a photograph which your colleagues, to their lasting credit, went and found within 24 hours. There's a photograph of Anjum Dar sitting next to him. There's a photograph of him cuddling him. You know, the two cuddly bears cuddling each other. They don't know each other, really. They deny that too. So that photograph is a fake. I didn't produce the photograph, but your colleagues found it. Give me a break. Any other questions? Thank you very much, Mr. Musavi, for joining us. Broadsheet के सरबराह कावे मुसावी हमारे साथ मौजूद थे. अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ब्रॉडशीट पर बयान, क्या बयानियां बदल रहे हैं कप्तान? वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो बयान दिया उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया क्या बदल रहा है और साथ ही साथ ऑपोजिशन इस पर क्या महसूस कर रही है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त इल्जामात की जद में है. पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा मोहम्मद ज़ुबैर भी हमें ज्वाइन करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा. ब्रॉडशीट सरबराह कावे मुसावी ने जो इल्जामात शरीफ फैमिली पर लगाए हैं उन इल्जामात का जवाब लेने के लिए तर्जुमान नवाज शरीफ और मरियम नवाज मोहम्मद ज़ुबैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं. पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा हैं. बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब आपके वक्त के लिए. ज़ुबैर साहब, अभी कुछ ही देर पहले ब्रॉडशीट के सरबराह जो कावे मुसावी साहब है वो हमारे साथ मौजूद थे और वो कह रहे हैं कि अंजुम डार नामी एक शख्स है, वो मुझे मिला है और तकरीबन को $25 मिलियन की सेटलमेंट के हवाले से कहा है कि आप $25 मिलियन ले लें, हमारा नाम उससे निकाल दें. और वो कहते हैं कि ये अब तय करना अथॉरिटीज़ का काम है, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का काम है पाकिस्तान के अंदर कि देखें कि भाई साहब कौन है. मैंने तो फोटोग्राफ सामने रख दिया है. ज़ुबैर साहब, आप बताइए अंजुम डार साहब कौन है, कब मिले? एक तो देखें जी, अंजुम डार के पर तो मैं आता हूँ कि बड़ी एक तो मुसावी साहब ने बहुत सी चीज़ें की हैं और कुछ उसमें बातें समझ आने वाली हैं, कुछ बातें समझ आने वाली नहीं हैं. उन्होंने अपने इंटरव्यूज़ में और स्टेटमेंट्स में ये कहा कि उनको एंगेज किया था मुशर्रफ साहब के ज़माने में सन 2000 में और कुछ 200 लोगों की लिस्ट भी दी गई थी जिनके बारे में उनको कहा गया था इन्वेस्टिगेट करने के लिए. लेकिन वो खुद उनके बकौल 2003 में वो कैंसिल कर दिया गया था कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ 2003 में. और उस वक्त तक उन्होंने कुछ फाइंडिंग्स की थी, कुछ नहीं की थी, बट इन टर्म्स ऑफ द रियल थिंग कि पैसा कुछ नहीं निकल सका था. और बहुत से इस 2003 के दरमियान इन्होंने बताया कि बहुत से लोग ऐसे थे वो 200 की लिस्ट में से जो नैब की गिरफ्त से बाहर हो चुके थे, चूँकि PVP पैट्रियट्स बना दी गई थी, PML-Q बना दी गई थी, तो बहुत से लीडर्स ऐसे थे जिनका नाम वहाँ से निकाल लिया गया था. ये तो एक फैक्ट उन्होंने खुद बताया और जिसकी हकीकत भी है कि अच्छा ज़ुबैर साहब, एग्जैक्टली ये सेम सवाल मैंने उसे किया है. मैंने कहा जी बात ये है कि 2003 में आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था, 2012 में आप कह रहे हैं कि अंजुम डार साहब मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं $25 मिलियन ले लो, हमारा नाम निकाल दो. तो कोई बात समझ नहीं आती. वो कहते हैं असल में मामला अदालत के अंदर था, लिटिगेशन में था, इसलिए वो मुझे अप्रोच कर रहे थे. नहीं, लेकिन उनका तो उनसे क्यों अप्रोच कर रहे थे? अगर लिटिगेशन में था भी तो इनसे तो हुकूमत पाकिस्तान का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो चुका था. एनीवेज, अगर वो मफरूज़ा ले भी लिया जाए, लेट्स एज्यूम के ले भी लिया जाए, उन्होंने ये हर दफ़ा का एलिजिडली अंजुम डार साहब जो थे एलिजिडली वाज रिप्रेजेंटिंग मियां नवाज शरीफ, ये उन्होंने कहा. और उन्होंने ये भी कहा कि वो मेरे सामने उन्होंने उर्दू में कोई टेलीफोन कॉल की थी जिसकी वो नहीं तस्दीक कर सकते कि वो क्या बात कर रहे थे. उन्होंने ये भी नहीं कहा कि कोई ऐसा एविडेंस उनको प्रोवाइड किया गया जो अंजुम डार साहब को इस्टेब्लिश करता था नवाज शरीफ के साथ.
सिवाय इसके कि एक तस्वीर थी, तस्वीरें तो हमारे से हर रोज़ ही बनवाई जाती है। लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है मेरा ख्याल है, जो सबके लिए तवज्जो के मरकज़ होनी चाहिए, 2012 में क्या हुआ, 2003 में क्या हुआ, 2010 में क्या हुआ। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, व्हाट ही हैज सेड इज़ कि आज हुकूमत वक्त है और हुकूमत वक्त के पास ख़जाने की चाबी भी है। और एक अहम तरीन जो है शहजाद अकबर साहब, उनके बारे में उन्होंने ये कहा, और एक सीनियर अफसर के बारे में ये कहा कि 2019 में उन्होंने आके कहा कि जी ये अगर आप इसका प्रूव करेंगे, कोई बड़ा अकाउंट है $1 बिलियन का, तो 50% कट हमें दें, फिर हम आपको कॉन्ट्रैक्ट देंगे। अभी अगर सबसे पहले तहकीकात होनी चाहिए तो किस चीज की होनी चाहिए? इसलिए होनी चाहिए कि वो हुकूमत वक्त है, उनके पास खजाने की चाबियां हैं, वो अकाउंटेबिलिटी कर रहे हैं, और उनके ऊपर उनकी तो गिरफ्त होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अच्छा, वैसे जुबैर साहब इंटरेस्टिंगली आपको बताऊं, 2002 में क्या हुआ था, इंटरेस्टिंगली सर मैं आपको बताऊं कि एवनफील्ड अपार्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने उनसे किया है। वो कहते हैं कि एवनफील्ड अपार्टमेंट जाहिर है एसेट रिकवरी यूनिट अगर काम कर रहा है, उनको पता होना चाहिए कि क्या टेक्निकलिटीज हैं। कहते हैं मैं बड़ा एक्सपर्ट आदमी हूं, मैं पढ़ाता हूं कि कैसे रिकवर कराना है, तो अगर खान साहब की हुकूमत जरा मुझे काम सौंप दे तो मैं बताऊंगा कैसे चुटकियों में एवनफील्ड अपार्टमेंट्स जो है वो पाकिस्तान की मिल्कियत बन जाएगा। लेकिन असल देखे ना, असल चीज क्या है। सो द फैक्ट्स दैट हैव कम टू, वो क्या फ्यूचर में कर सकते हैं क्या नहीं। उन्होंने कहा कि शहजाद अकबर साहब ने और सीनियर सर ने उनको ये कहा कि जी हम आपको कॉन्ट्रैक्ट देंगे अगर आप इसमें से कट हमें देने के लिए तैयार हो। दूसरे फैक्ट क्या है जो आजकल के जमाने का है, वो ये है कि पाकिस्तान हाई कमीशन के अकाउंट्स फ्रीज करके $25 मिलियन निकलवाए गए। किसकी नाअहली है, किसकी हुकूमत वक्त में ये $25 मिलियन पाकिस्तान के पैसे उधर चले गए? इस वक्त पीटीआई की हुकूमत है ना। तीसरी चीज, लंदन हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट की गई कि एवनफील्ड अपार्टमेंट्स को अटैच किया जाए। किसने रिफ्यूज किया? दिसंबर 2020 में लंदन हाई कोर्ट ने। तो इन्वेस्टिगेशन तो इसकी होनी चाहिए। वो वजीर, अच्छा जुबैर साहब ये केस, उनके जो वजीर आज़म है वो कह रहे हैं कि जी एक और पनामा आ गया। अच्छा ये बात आप ठीक कर रहे हैं कि ब्रॉडशीट जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के अंदर ये केस हारा है, और उसके अंदर जिसमें उसने क्लेम किया कि एवनफील्ड अपार्टमेंट से जो रिकवरी है वो हमें दी जाए, वो नहीं मिल सकी। लेकिन इसका मतलब ये समझा जाए कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीती है, ये कैसे अखज़ कर लिया जाए कि अगर ब्रॉडशीट हारी है तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीती है? क्योंकि उसके बाद ट्वीट्स की गई मरियम बीबी की तरफ से भी और नवाज शरीफ साहब की तरफ से भी। देखिए 2000 से एक पहले जनरल परवेज मुशर्रफ डिक्टेटर ने लगाया गया इनको, फिर उसके बाद 2003 में हमारे कहने पर तो नहीं कैंसिल किया गया, मुशर्रफ साहब ही की हुकूमत ने कैंसिल भी कर दिया। 2018 में इनकी हुकूमत के बाद दोबारा एक्टिविटीज़ होनी शुरू हो गई, 2.5 साल उसको हो गए। अगर आज तक कुछ नहीं हुआ तो हम अपनी विक्ट्री क्यों ना उसको तसव्वुर करें। अगर हुकूमत वक्त को शिकस्त हुई और $25 मिलियन इनकी जेब से निकल के चले गए, पाकिस्तान के खजाने से निकल के चले गए, तो वो किसकी विक्ट्री है? इनकी विक्ट्री है। और अगर उनके ऊपर ये इल्जाम, अभी तो देखो ना अकाउंटेबिलिटी के वो वजीर हैं, वो पाकिस्तान के लिए अकाउंटेबिलिटी का काम कर रहे हैं। उस मैंडेट के तहत जो इमरान खान साहब ने सेट किया है करप्शन को खत्म करने के हवाले से, उनके अपने अकाउंटेबिलिटी के हेड के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम आज लग गया है। तो सबसे पहले तो इनको शहजाद अकबर साहब को फारिग करें कि जब तक वो इन्वेस्टिगेशन करें, 2000 से करें, 2012 की भी कर लें, 2018 की भी, जो भी करनी है, हम उससे नहीं भाग रहे। लेकिन बात यह है सबसे ज्यादा कि इस वक्त हुकूमत वक्त में जो साहब बैठे हुए हैं शहजाद अकबर, एंड बाय द वे उससे भी ज्यादा सीरियस चार्ज जो है, जो मुसावी साहब के अगर वर्ड को वर्ड बाय वर्ड भी ले लिया जाए तो वो कह रहे हैं, एक साहब आए थे उन्होंने भी कहा था कि कट दे। अभी क्या हो रहा है, ये मुल्क है तो कोई शरीफ आदमी आया था, और हम हाइब्रिड रजीम का इसी वजह से तो कहते हैं। जुबैर साहब एक क्रेडिट वैसे मैं मुसावी साहब को भी दूंगा, उन्होंने कहा कि 4.5 अरब रुपया जो हमें दिया गया है, जो मेरी कंपनी को दिया है, मुझे बड़ा दुख हुआ है कि वो पाकिस्तानी टैक्स पेयर की जेब से गया है। इसका दुख मुसावी को भी है। ये बात आपकी ठीक है क्योंकि वो पाकिस्तानी कौम की जेबों से चला गया है। लेकिन इमरान खान साहब ने जो आज ट्वीट्स किए हैं सर, वो कह रहे हैं कि मेरी 24 साल जद्दोजहद के ऊपर मोहर तस्दीक सब कर दी है ब्रॉडशीट के अंदर। मुझे ये लग रहा है कि अब खान साहब की जो सियासत है उसका मरकज होगा ये ब्रॉडशीट मामला, और अब इसको लेकर आपको तनकीद का निशाना बनाया जाएगा। पहले पनामा था, ब्रॉडशीट बन जाएगा आपके गली के। मेरा ख्याल है, मैं पता नहीं एक हार्ड वर्ड यूज नहीं करना चाहता कि हमारे वजीर आज़म, तो मैं एक सेफ लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, हमारे वजीर आज़म को ना समझ है, ना अक्ल है, ना समझ बूझ है, ना उनको इतनी डेप्थ है कि वो समझ सकें कि ये फैक्ट्स हैं क्या।
अगर जो मैंने फैक्ट्स बताए हैं 2000 से लेके, इसमें से एक भी फैक्ट आप, उसमें सिर्फ एक आता है 2012 का, वो अंजुम डार का, जिसको वो भी कह रहे मुसावी साहब कि जी ये एलिजिडली था। चले उसको मान लिया, उसकी तहकीकात भी आप कर ले, बट वो कोई सेंस नहीं बनता कि 2012 में $25 मिलियन या वो कितने वो कह रहे हैं ऑफर कर रहे हैं और आप चले जाए। भाई वो तो थे ही नहीं कहीं, वो कहाँ चले जाए? उनको कहा गया ना कि आप चले जाए, भाई वो तो कहीं थे ही नहीं, उनका तो कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान की हुकूमत के साथ था ही नहीं, तो उनको क्यों कोई जाके 25 मिलियन? बट चले आप कर लेना इन्वेस्टिगेशन। बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये, नवाज शरीफ तो लंदन में बैठे हुए, जरदारी साहब हॉस्पिटल में बीमार हैं, जो भी आपने तहकीकात करनी है, आफ्ताब शेर पहुंच, जो भी फैसल साले हयात, बट इस वक्त जो हुकूमत में बैठे हुए जिन्होंने कट मांगा जाके। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जुबैर साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा मोहम्मद जुबैर हमारे साथ मौजूद थे। हुकूमती मौक़िफ़ लेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सदाकत अली अब्बासी ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब आपके वक्त के लिए। भाई साहब सबसे पहले तो ये बताइएगा, ये ब्रॉडशीट वाला मामला जो है वो दैट केम इनटू लाइट, और खान साहब ने खासतौर पर आज जो ट्वीट्स किए हैं, और उससे ये लग रहा है, एक तासुर मिल रहा है कि पनामा के बाद उन्होंने खुद भी कह दिया कि अब ब्रॉडशीट के ऊपर तकिया है, और ब्रॉडशीट ने उनकी 24 साल जो सियासत है उस पर मोहर तस्दीक सब्त कर दी है। अब भाई साहब, एक ऐसी कंपनी जिसको हमने टैक्स पेयर का 4.5 अरब रुपया पहले ही दे दिया है, हम ऐसी कंपनी जिसने खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा 12 आने वाला हिसाब है, उस पर रिलाय क्यों कर रहा है? हम समझते हैं कि पीटीआई का यहाँ पे आना, पीटीआई का गवर्नमेंट बनाना, पीटीआई का इतना बड़ा वोट बैंक बनना, उसकी एक वाहिद वजह ये थी कि लोग समझते थे कि पाकिस्तान में करप्शन है, इमरान खान ऐसे लीडर हैं जो करप्शन का कला कमा कर सकते हैं। इस हवाले से डिबेट है और जाहिर है बड़ी आवाजें हैं। तो ये जिस तरह के पहले बीबीसी की रिपोर्टें आई, आईसीआईजे की रिपोर्टें आई पनामा की, उससे पहले डेली मेल्स की रिपोर्टें आई इसी करप्शन पे। अब ये भाई साहब ठीक है, बड़ी रिपोर्ट्स आई हैं, पनामा पेपर्स भी आ गए, बट सवाल बड़ा सादा सा है, व्हाट हैव यू एंड योर गवर्नमेंट हैज रिकवर्ड सो फार? मतलब अभी तक रिकवरी कितनी हुई है, कितनी लूटेड मनी वापस पाकिस्तान के अंदर आई है? सर क्वेश्चन रिमेन्स द सेम। दो बातें, एक तो ये है कि रिकवरी पैसा वापस आना चाहिए, वो तो एक बड़ा टारगेट है, लेकिन क्या अगर हमने जो करप्शन हुई है उसको सजा नहीं देंगे तो क्या आइंदा आने वाले दिनों में आप करप्शन को रोक सकते हैं? भाई साहब इंटरेस्टिंगली हर 2-3 साल बाद अगर आप एक एनआरओ दे देंगे तो हर आने वाली हुकूमत समझेगी, पीटीआई की गवर्नमेंट आज समझेगी कि हम करप्शन करें, हमें भी कोई एनआरओ दे देगा। चले मैं वैसे आपको इंटरेस्टिंगली बताऊं सर, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं आपको सर। ये जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का नारा इस वक्त ऑपोजिशन भी लगा रही है और फी जमाना लगता रहा है, जाहिर है जो हुक्मरान जमात होती है वो पॉलिटिकली विक्टिमाइज करती है, दूसरी कहती है हमें विच हंटिंग का निशाना बनाया जा रहा है। अब मामला यह है कि जिन 200 अफराद के नाम ब्रॉडशीट के साथ शेयर किए गए थे, उन 200 में से बहुत सारे ऐसे जो आपकी हुकूमत का हिस्सा है। अब बताएं क्या करेंगे? देखिए ना, हमें कोई इसमें एतराज नहीं है। मेरी हुकूमत में अलीम खान थे, अलीम खान पे नैब का केस बना, वो जेल काट के जमानत पे आए। मेरी हुकूमत में सप्तान खान थे, उन पे केस बना, वो जेल काट के जमानत पे आए। बहुत सारे और लोग हैं जिन पे केसेस हैं, हमें कोई इसमें एतराज नहीं है। हम तो कोई इंक्वायरी कमेटी बिठाते हैं, अपने वुज़रा के नाम आते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ होती हैं। कई आपको पता है ऐसे तर्जुमान थे जिन पे इल्जामात आए, उनको निकाल दिया। तो हमें शख्सियात से बालातर होके एहतसाब के पूरे बयानिए को और फिर आपको याद होगा सर, पनामा पेपर्स जब आए तो पनामा में सिर्फ शरीफ फैमिली का नाम नहीं था, उसमें बहुत सारे लोग थे जो शायद अब किसी जगह पर जिक्र भी नहीं होता, ना खान साहब की तकारीर में होता है, ना आपके तर्जुमानों के और वज़रा की तकारीर के अंदर होता है। सवाल मेरा यह है सर कि जो 4.5 अरब रुपया टैक्स पेयर की जेब से गया है, आपको पता है सर कि 2018 के अंदर ये 17 मिलियन था, लैतो लाल से काम लिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट ने, 2019 में 20 मिलियन तक पहुंचा दिया। 2020 में जब हम फाइनली इनको कुछ पैसे देने के लिए पोजीशन में आए तो हमारे हाई कमीशन के दफ्तर से 4.5 अरब रुपया, वो भी पूरा नहीं हो रहा था, पाकिस्तान से कुछ पैसे मंगवा के भेजने पड़े। तो सर दे हैव डन सो मच डैमेज टू अस। ये कोई छोटा नुकसान नहीं है। देखें, अगर इतने अरब गए हैं तो जो नैब ने रिकवर किए हैं वो भी तो देखे ना, कितने 100 अरब रिकवर कर चुका है नैब। सर कितने किए हैं? कितने रिकवर किए नैब ने भाई साहब? देखे ना, 451 अरब तो वो रिकवर कर चुके हैं। ये खान साहब ने भी ट्वीट कर दी, आपने भी कह दिया 389 अरब रुपए का, लेकिन नैब ने अभी तक नहीं कहा। नैब इस पे क्लियर ही नहीं है हमने कितने और किससे रिकवर किए हैं। 389 ये नैब के डॉक्यूमेंट्स है, 389 हमारे दौर का है और 104 अरब। अच्छा चले मुझे बताएं रिकवर किससे किए आप? मैं अगर पिछली बात का जवाब मेरा सुन लेना, पता है सर? नहीं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सर, ये किससे रिकवर किए आपने? ये पैसे जो नैब ने किए किससे हुए रिकवर? ये सारे मुजिर लोग ने करप्शन किया, उनसे रिकवर हुए। शरीफ फैमिली से कितने रिकवर हुए इसमें से? देखे ना आप दो बातों को आप मिक्स करें, मैं इसीलिए कहता मेरी बात सुन लें। सवाल बड़ा सादा है। मैं उसी पे आता ना, शरीफ फैमिली के केस अभी तक कंक्लूड नहीं हुए, 2 में उनको सजा होगी है, बाकी उनके 7 अरब रुपए के उनपे
उन पे चार्जेस हैं, वो अपीलों में बैठे हुए। लेकिन बात यह है कि आपने कहा कि पनामा में भी खाली शरीफ खानदान का जिक्र है। देखिए बाकी लोगों को सियासी कवरेज नहीं है, उनके लिए कोई असेंबली में लोग तकरीरें नहीं करते, उनके लिए But if they have looted money, that money should be recovered, भाई साहब. My question remains the same. I agree with If you. they have looted मैं money, ये that नहीं money कह रहा। should be recovered. ना देखिए, अगर कोई सरकारी सरपरस्ती में लूटता है और कोई उसकी वजह से लूटता है, वो दोनों का इसी अलग को अलग केस पॉलिटिकल है। विक्टिमाइजेशन कहते हैं ना सर. ना पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं, दैट इज पॉलिटिकल कवरेज। ये पार्लियामान को, ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को, ये जमहूरियत को अपनी करप्शन बचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि जो आम लोग करप्ट है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा, अब भाई साहब आप टॉक शो नहीं करते। अब बासी साहब लेट्स कंक्लूड इट ना। देखें, अब खान साहब ने ये कह दिया कि अब जो अगला उनका हदफ है, ये जद्दोजहद है, वो ब्रॉडशीट मामले को लेकर होगी। तो सर, व्हाई आर यू डिस्ट्रैक्टिंग कॉमनर्स फ्रॉम रियल इश्यूज? एक आम आदमी का इशू वीट क्राइसिस होता है सर, गंदम आटा जो है सस्ते दामों नहीं मिलता है, चीनी का मामला होता है, या अच्छा जो ऑन ग्राउंड इश्यूज है, रियल इश्यूज है, उनसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए नैब मंत्रा, कभी ब्रॉडशीट मंत्रा, कभी पनामा मंत्रा शुरू हो जाता है सर। तो कैसे रियल इश्यूज पर बात हो? पहली बात ये कि ये गवर्नमेंट है जो हफ्ते के 7 दिन काम करती है। प्राइम मिनिस्टर सिर्फ संडे को छुट्टी करते हैं, सैटरडे को भी घर में मीटिंग करते हैं। 17 दिन इकोनॉमी पे, कंस्ट्रक्शन पे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बढ़ाने पे, एनर्जी पे मीटिंग चल रही होती हैं। वो आपकी और मेरी दिलचस्पी का मौजू जरा नैब बन जाता है, इसलिए इस पे बातें होती हैं। अदरवाइज अच्छा चले, मुझे बताएं सर, मेरे व्यूअर्स को भी जरा बताएं कि मेरी बात आप पूरी तो जाने देना। मेरी बात, इस गवर्नमेंट के इलेक्शन जीतने की सबसे बड़ी वजह यही थी कि हमने लूटा हुआ माल वापस लाना था और मजीद चोरी चिकारी को रोकना था। तो ये हमारा बहुत बड़ा नैरेटिव है और बाकी सारे काम चल रहे हैं। आप देखें आज आपको कितनी अच्छी खबरें मिल रही हैं। आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री बूम कर रही है, आपकी रेमिटेंसेस बढ़ रही हैं, स्टॉक मार्केट आपकी बेहतर है, आपका इन्फ्लेशन नीचे आ गया, आपकी करेंसी स्टेबल होगी। ये सारी इसी हुकूमत ने की है ना। वो आपको भी पसंद नहीं है, लोगों को भी पसंद नहीं है। आप सवाल करेंगे नैब का तो जवाब तो आएगा। देखिए हम वो ये जो बात आप इकोनॉमी पे कर रहे हैं, हम इस पे एक सेपरेट प्रोग्राम कर सकते हैं। मैं आपको वैसे बताऊं, वैसे क्योंकि जराए गुफ्तगू आपने जिक्र छेड़ दिया है। आपका सवाल ये था, क्योंकि आपने सवाल ये था कि आप कुछ और नहीं करते, आप सिर्फ विंड चैंटिंग करते। अच्छा मेरी बात सुन लेना भाई साहब। अब आपने 2 अरब रुपए की अगर बरामदात की है ना सर, जिसका क्रेडिट जाना चाहिए, ज़ाहिर है पीटीआई गवर्नमेंट ने एफर्ट है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बूम मिला है, तो 5 अरब से ज़ायद जो है ना आपकी दरामदात हो गई है। जो आप दरामद कर रहे हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट जो खसारा जिसको डिप्लीट करने की बात करते हैं, फिर बढ़ता चला जा रहा है। और दरामद पता है क्या हो रहा है सर? चीनी दरामद हो रही है, गंदम दरामद हो रही है, और आज की खबर है कि और मजीद दरामद करने जा रहे हैं। जी तसल्ली से सुनिएगा कि जब हम आए थे ना मेरे भाई, तो $1 की एक्सपोर्ट के बदले में 3 की इंपोर्ट थी। 20-22 अरब की एक्सपोर्ट थी, 61-62 की इंपोर्ट थी। वो खसारा कम करना बहुत बड़ा अपहिल टास्क था, वो हमने कर दिया। आज भी हम ये दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान की 17 साल तारीख में पहली दफा करंट अकाउंट कम हुआ। मैं स्टेलमेंट नहीं चाह रहा, क्योंकि मुझे पता है आप खान साहब के जो है बड़े अच्छे तर्जुमान हैं और आप उनके करीब होते हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, माय पॉइंट इज कि जब आप वहां पर होते हैं तो खान साहब को ये बताइएगा सर कि फिर से करंट अकाउंट डेफिसिट जिसका क्रेडिट लेती है ना गवर्नमेंट, वो फिर से बढ़ने जा रहा है सर। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं। देखिए अगर बढ़ता, अगर बाज़ औक़ात आपकी जरूरी इंपोर्ट होती है तो हम उस जरूरी इंपोर्ट को रोकना नहीं चाहते। अगर करंट अकाउंट का खसारा $20 अरब से कम हुआ है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। खुदा ना खास्ता $20 अरब के करंट अकाउंट का खसारा अगले साल होता तो पाकिस्तान तो बैंकरप्ट हो जाता। तो वो ठीक है, आपकी बातें ठीक है, उसकी वजह से महंगाई भी हुई है, डिवैल्यूएशन का भी इम्पैक्ट आया है, लेकिन ये सारी बातें आपकी ठीक है। हमने को पाकिस्तान को जितना पाकिस्तान खराब हुआ, जितना ये खसारे हुए, हमारी वजह से तो नहीं है, ये तो माजी की कुमत की वजह से। हम तो ठीक कर रहे हैं। तो सवाल आपका ये था कि क्या आप इकोनॉमी को ठीक क्यों नहीं कर रहे? मैंने कहा इकोनॉमी को भी ठीक कर रहे हैं और एहतसाब के प्रोसेस को भी हम एक आगे लेके चल रहे हैं, ताकि जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा, आज पाकिस्तान में जितने खसारों की वजूहात करप्शन है, उनका सजा मिलनी चाहिए, ताकि आइंदा के लिए मिसाल हो, मेरे लिए मिसाल हो, मेरे वजीर के लिए मिसाल हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सदाकत अली अब्बासी हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पीडीएम का बलूचिस्तान में पावर शो कैसा रहा और खासतौर पर सेनेट इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज एक समाअत हुई है, इस आम मामले पर बात होगी। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। इलेक्शन कमीशन के सामने ऑपोजिशन जमातों के एहतजाज की तारीख जो करीब आ रही है। हुकूमत की जानिब से पीडीएम को रोकने के लिए कोशिशों में तेजी आ गई है।
ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने मदारिस के बच्चों को पीडीएम एहतजाज से रोकने के लिए मुशावरत मुकम्मल कर ली है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद को टास्क सौंप दिया है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कल उलमाए कराम से हम मुलाकात भी करने जा रहे हैं और उन्हें हुकूमती पॉलिसी पर एतमाद में भी लेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि मजहब की आड़ में सियासत की इजाज़त नहीं दी जा सकती। उधर आज पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने लोरालाई में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए अपोजिशन की पॉलिसियों को खुलकर तनकीद का निशाना बनाया। सरबराह JUIF का कहना था कि लोग हुकूमत से बेजार हो चुके हैं, ये दूसरों पर इल्जाम लगा रहे हैं कि ये चोर हैं और वो चोर हैं। आज ऐसी हुकूमत आई है कि लोग कह रहे हैं कि पुराने चोरों को वापस लाओ ताकि रोटी तो मिले। इस हुकूमत ने मुल्क की मईशत का कबाड़ा कर दिया। मौलाना लोरालाई में खिताब करते हुए क्या कह रहे थे उसकी एक झलक आपके सामने रखते हैं। याद रखें, इमरान खान ने तो जाना ही जाना है। ये तो किसी खाते का इंसान ही नहीं है। जो कुव्वतें एक तरफ अवाम है पाकिस्तान के, फैसला ये करना है कि पाकिस्तान का मालिक पाकिस्तान के अवाम है या पाकिस्तान का मालिक हमारे कुछ ताकतवर इदारे। ये जाली हुकूमत, ये जाली वजीर आजम, इसकी तो अक्ल ही नहीं है, इसका तो कोई नजरिया ही नहीं है। वोट चोरी करके आने वाली हुकूमत, उसे मजीद कौम पर मुसल्लत होने का कोई हक हासिल नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान का पीडीएम जलसे से खिताब आपने देखा है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने को बेईमानी करार दे दिया है। सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने से मुताल्लिक सदारती रेफरेंस की समाअत चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में जस्टिस मुशीर आलम, जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस याया अफरीदी पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने की है। और चीफ जस्टिस ने कहा है कि हम आइन के मुहाफिज हैं। दौरान समाअत जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि मुंतखब नुमाइंदा अवाम और पार्टी के सरबराह को जवाबदेह होता है। उन्होंने कहा कि रुकन सूबाई असम्बली को खुफिया राय शुमारी में आज़ादाना वोट का हक देना अहम सवाल है। इंतखाबात में लोग उम्मीदवार नहीं बल्कि पार्टी को वोट देते हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन का कहना था कि खुफिया वोटिंग में पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देना बेईमानी होगी। जस्टिस याया अफरीदी ने कहा कि आप अखलाकी बात कर रहे हैं, अदालत में मामला सियासी है। अखलाकी और सियासी मामले पर अदालत अपनी राय क्यों दे और हुकूमत अदालत से क्यों राय मांग रही है, पार्लियामेंट से रुजू करे। जस्टिस एजाजुल एहसन का कहना था कि आर्टिकल 226 के मुताबिक वजीर आजम और वजीर आला के अलावा तमाम इलेक्शन खुफिया वोटिंग से होंगे। कोई रुकन सूबाई असम्बली पार्टी के खिलाफ वोट देना चाहता है तो सामने आकर दे। उन्होंने कहा कि आइन के आर्टिकल 53 और 60 में जिक्र नहीं कि इंतखाबात खुफिया होंगे या ओपन बैलेट के जरिए होंगे। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि आर्टिकल 226 का इतलाक हो तो मखसूस नशस्तों के इंतखाबात हो ही नहीं सकते। कौमी और सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन कानून के तहत होते हैं। अदालत ने समाअत जुमेरात दिन 1 बजे तक मुलतवी कर दी है। अब वाज़ेह रहे कि वफाकी हुकूमत ने 23 दिसंबर को सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट के जरिए कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर कर दिया था। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने आइन के आर्टिकल 186 के तहत सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भिजवाने की वज़ीर आज़म की तजवीज़ की मंजूरी दे दी है और रेफरेंस पर दस्तखत किए थे। अब मामला क्या निकलता है, यकीनन ये मामला कोर्ट में है और इस हवाले से जो इलेक्टोरल कॉलेजेस हैं उन्होंने भी अपने जवाब जमा करा दिए हैं। सिंध को भी इस हवाले से जवाब जमा कराने के लिए कहा था, कुछ मोहलत भी दी गई है। अब ये मामला अदालत में है, देखते हैं कि अदालत एग्जेक्टिव को ये मामला सौंपती है, क्या मामला पार्लियामान के अंदर बारकैफ डिस्कोर्स ये सेटल होता है और कैसे आगे बढ़ता है, ये तो वक्त ही बताएगा। ये तो था आज का दस्तक। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।